Assalamu alaikum ji and welcome back to Nova Research Internship 2024. And today we will continue our previous lecture that is on review article, and our instructor has joined us. Ms. Saddaf Akbar is here. The ma'am floor is open for you. Thank you so much, Atik. Swati, can you give me a share screen? Uh, you Okay. can share. You Mm. can share, ma'am. Yes, I did. Thank you. Okay. Assalamu alaikum. Welcome back to all of you. Today we will discuss about the remaining part of our review article. Yesterday we discussed the components and the structure of how to write a review article. Today we will discuss the AI tools. How can we use different types of AI tools in your research article? And with that, you can discuss some sample papers of the reviewer. Okay. First of all, it's request to all of you to please mute your mic so you can listen my voice clearly. Okay. So let me start. Okay, I hope you all can see my screen. Today we did all these parts. Okay, I'm not going to repeat this. Okay. Ma'am, I am muting all, then unmuting you only. Sure. You can unmute yourself. Okay. Yes. Okay, you can carry on. Okay. My screen is visible for all of you. Yes, ma'am. It's Okay, fine. Good. Thank you. Acha. Today, as I said earlier, I will discuss about I look for resources for my literature review. Yesterday, if you remember, I discussed the literature review introduction by the part of introduction in review article, introduction, the part of review article. So, अब हमें वो जो हम रिव्यू आर्टिकल लिखने के लिए जो हमें रेफरेंसेस चाहिए, where can I collect the references? What is the authentic sites? Okay. Section 1 is visualization tools. And what does mean it which tools? Okay. I will discuss about the sites one by one. Okay. The number one is a site, SCITE. Okay, now I'm going to share you on online visit of the site so you can see the clear picture. I'm going into the Google where you can see how this work, and I'm going to screen my Google screen. Okay, let me show you. Yes, right. I hope my Google screen is on for all of you. Okay, with the site. And Google site. AI for research. Okay, now this is a website. The name is site scite.ai. इस पे जाकर हम इसमें जो है किस तरीके से सर्च कर सकते हैं. अब यहाँ पर दिया हुआ है दिस वन इज ट्राइड. अब मैंने यहाँ पर किया ट्राइड. अब ओके. Ask a question any. You can give me any one topic, any keyword. Can you suggest any keyword for me?
from the participants, or I will write my own by my own. Okay, one is surgical site infection. Thank you, Mehani. Give me a topic. Okay, surgical site infection. Surgical site infection. Okay, now it's loading. Okay, now how much references should I get? Okay, it's loading. Okay, 25 results, then into one. Then I will go to the references. So these references I have got. Okay. Update on the management of surgical site infection, and then different types of references I received. Acha. Let me click on anyone. Okay, I'm going to open one reference. Okay, update on the management of surgical site infection. ठीक है, अब this is the author's name and साइट किसको कैसे करना है, यहाँ पर आपके यहाँ पर मेंशन है, और ये कितनी जगहों पर कितनी पब्लिश में कितनी पब्लिकेशन में साइट ऑलरेडी हो चुका है, साइटेड बाय 14 पब्लिकेशंस. ठीक है, रेफरेंसेस 18 पब्लिकेशंस. अच्छा, ऐसा होता है कि बहुत सारे पेपर्स हमारे पास होते हैं, उनका कंप्लीट हमें जो है डिटेल नहीं मिल रही होती है. सब बाज़ औक़ात हमें जो है उसको बाय करना पड़ता है, बाज़ औक़ात हमें जो है उसको जब हम पीएचडी कर रहे थे, फिर जब मैं कर रही थी, तब मेरे टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे जो है मुझे जर्नल्स वो पेपर्स ऐसे थे कि वो पूरा कंप्लीट पेपर ओपन नहीं होता था. ठीक है, और आपको थीसिस में लिखने के लिए उसकी पूरी डिटेल पूरा कंप्लीट आपको पेपर चाहिए. तो मैं क्या करती थी कि जो है जो उसमें हमारे पास ऑथर्स होते हैं उनका ईमेल एड्रेस दिया हुआ होता है, तो मैं उन ऑथर्स को ईमेल कर देती थी कि मुझे ये वाला पेपर चाहिए, this is my this for my research and I would like to add in my thesis. तो वो मुझे जो है सेकंड डे ही मेरे पास वो पेपर मुझे जो है रिसीव हो जाता है. तो उस टाइम तो इतने सारे एआई टूल्स अवेलेबल नहीं थे. ये मैं आपको 2006-7 की बात बता रही हूँ, 2006-7 की, जब मैं पीएचडी कर रही थी, एमपी पीएचडी. तो उस दौरान उस टाइम की बात. तो उस टाइम तो इतने सारे टूल्स, उस टाइम हमारे पास पबमेड, गूगल स्कॉलर, बस यही 2-3 साइट्स होते थे जिसमें हम जाके सर्च कर होते थे. उस पर भी बहुत सारे पेपर्स हमारे पास ओपन नहीं होते थे. तो आई डिड दिस, मैं ऐसे ही करती थी कि मैं जो है मैं ईमेल्स में जाकर उनको फिर ईमेल करती थी. तो सेकंड डे ही दे वर वेरी हेल्पफुल फॉर्चुनेटली. तो इस तरीके से आपको एक, क्योंकि आप जब कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हो, थीसिस लिख रहे हो, डिसर्टेशन लिख रहे हो, यू वांट अ कंप्लीट पेपर, है ना. आपको एक कंप्लीट पेपर चाहिए. सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट से काम नहीं होता. एब्स्ट्रैक्ट में तो खाली बस आपको एक मरकजी ख्याल, एक समराइज फॉर्म दे दी जाती है कि अच्छा ये काम इसमें होगा, बट डिटेल कि किस तरीके से मटेरियल मेथड्स उन्होंने अप्लाई किया, किस तरीके से उनके जो है रिजल्ट आए, उन्होंने अपने रिजल्ट को किस तरीके से कंपाइल किया, कैसे उन्होंने पूरी अपनी स्टडी को जो है देखा. ठीक है ना. तो उसके लिए यू हैव टू फाइंड आउट द कंप्लीट पेपर. तो अब ये वाली वेबसाइट है site.ai, ये आपको बता रही है कि भाई ये चीजें हमारे पास मौजूद. अच्छा, इसने मुझे कितनी सारी साइट्स, कितने सारे जो है रेफरेंसेस दिए हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस के लिए. अच्छा, यहाँ पर जो है पूरी है इसने मुझे जो है वो दे दिया कि एक पूरा ये जो पेपर था आपका, इसके हिसाब से इसने मुझे ये दे दिया. ठीक है, अब अगर इसके पास जो रेफरेंसेस है, अब मैं उन जब मैं रेफरेंसेस पर क्लिक कर रही हूँ, तो वो रेफरेंसेस भी मेरे पास यहाँ पर ओपन हो रहे हैं. ठीक है ना. तो इट इज अ वेरी गुड साइट, रेफरेंसेस. ठीक है. अच्छा, सर्च स्ट्रेटजी में आप जाकर इसको जो है ये देखिए, ये तमाम रेफरेंसेस हैं जो उसने मुझे दिए. सर्च यूज्ड, ठीक है, these are the searches that assistant, जिसने मुझे पब्लिकेशन कंसल्टेंट, ठीक है ना, इसने मुझे देखे 57 पब्लिकेशंस दिए इसने मुझे. ठीक है, इसमें यहाँ पर पूरी डिटेल्स मौजूद है.
और 2023 में ये हुआ, 2020 में, 2021 में, ठीक है। तो इट इज अ वेरी वेरी यूजफुल साइट, so you can use this. Okay, now I'm moving further, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पास एआई साइट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड वन एक और है, वो भी बहुत अच्छी साइट है, वो है कंसेंसस। वो भी मैं आपको बता रही हूँ। कंसेंसस, एक को टॉपिक आया था मेरे पास, एंजियोग्राफिक पेशेंट, अलीना ने शेयर किया है। अब मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर, एंजियोग्राफिक पेशेंट, ठीक है ना। मुझे इसके ऊपर पेपर चाहिए, ये सर्च कर, यहाँ पर है कि जितने भी ए टूल्स है, रेफरेंसेस के, इसमें आप लोग अपनी मर्जी से इसको जो है फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें, ये एंजियोग्राफिक पेशेंट्स के ऊपर मेरे पास इसने मुझे ये रेफरेंसेस दिए, ठीक है। अब इसमें एक के मार दिए, ये यहाँ पर ये फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग को साइड में फिल्टर का ऑप्शन नजर आ रहा है। अब मैं जब यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे एयर्स दे देगा, ठीक है। अभी मुझे पेपर्स चाहिए 2023 के, ठीक है। तो ये मुझे पूरे 2023 से नाउ, यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है 2023 नाउ। अब 2023 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर्स पब्लिश हुए हैं एंजियोग्राफिक पेशेंट पे, इसने मुझे यहाँ पर ये बता दिया, ठीक है। पेट वेस्कुलर एक्टिविटी स्कोर फॉर प्रिडिक्टिंग न्यू, ठीक है ये। अच्छा, अब ये मुझे जो है ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, ये भी बता रहे हैं कि ना, एंड ऑब्जर्वेशन स्टडीज व्हेन रिसर्चर्स ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ, जैसे वो सिर्फ जो एक ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसमें कोई न्यू चीज नहीं मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये भी इसने मुझे बता रहा है और कितनी जगह ये इसको कैसे साइट करना है, इसने मुझे ये भी बता दिया कैसे आपको अपने रेफरेंस में ऐड करना है इसको, ठीक है। इसके अलावा ये आपका जो है सेकंड दिया मुझे, कोरोनरी एंजियोग्राफिक प्रोफाइल, ठीक है। ये स्नैपशॉट स्टडी है। अब ये आपको जो है इसकी डेफिनेशन से बता रहे हैं कि व्हाट डज मीन, ये किस तरीके से इसने किया था। ये देखें, किन किन पॉपुलेशंस पे काम किया है, पॉपुलेशन विद एसीएस एजेड 51 टू 60 इयर्स, ठीक है। मेथड इसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी किए किए इन्होंने। फिर इसमें इनको आउटकम क्या था, इन्होंने देखा कि जो है क्लिनिकल और एंजियोग्राफिक प्रोफाइल्स ऑफ एसीएस पेशेंट्स, और फिर इसको किस तरीके से साइट करना है, ये भी चीजें इसमें बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड थर्ड इसने मुझे दिया, जिसमें आल्सो ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी। फिर अगर आपको स्टडी स्नैपशॉट देखना है इसका, तो ये भी आपको बता देगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से इसमें क्या क्या हुआ है, सैंपल साइज कितना था, 852 था, कहाँ पर ये स्टडी हुई, चाइना में हुई है, ठीक है। तो ये आपको ये पूरी जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और रिजल्ट क्या रहा, मेल पेशेंट्स एंड हायर रेट्स ऑफ इलेक एंड रीनल आर्टरी, ठीक है ना, इन्वॉल्वमेंट एंड सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन। तो ये इस तरीके से, ये जो वेबसाइट है कंसेंसस नाम है इसका, ठीक है, consensus.app, ये आपको ये डिटेल्स बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर मजीद इसको जो है अगर मैं फिल्टर आउट करना चाहूँ कि मुझे इसको फर्दर, अच्छा मुझे देखिए इतनी सारी रेफरेंसेस देती हैं, ठीक है। लोड मोर रिजल्ट्स, मुझे मजीद रिजल्ट्स भी ये दे सकता है, ठीक है, अगर इसके पास मौजूद होंगे 2023 से लेकर अभी तक के। तो इसमें जो फिल्टर का ऑप्शन होते हैं, देखिए इसने मुझे और रिजल्ट्स भी दे दिए। तो यहाँ पर जाकर आपने जब इस पे क्लिक किया, लेट मी क्लिक ऑन दिस, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो ये मुझे जो है एक अलग विंडो ओपन करेगा, दिस वन, ठीक है। इसने एक अलग विंडो ओपन की, और यहाँ पर मुझे इसने इसका एब्स्ट्रैक्ट बता दिया, की टेक अवे, कि क्या ये पेपर किस बारे में है, व्हाट दिस पेपर इज अबाउट, ठीक है ना। कि की टेक अवे क्या है, कि अगर आपको फर्दर इसमें आपकी आपकी इससे रिलेवेंट चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, डेटा होगा कि नहीं होगा।
यहाँ से पूरा दे दिया, ऑथर्स नेम हो गया, साइटेशन में वन जगह, ये एक जगह साइट हुआ है खाली बस, एब्स्ट्रैक्ट इसने मुझे बता दिया, ठीक है। अब मैं देखूं, अच्छा इसमें यहाँ पे रेफरेंसेस कौन कौन से ऐड हुए हैं वो भी इसने मुझे बता दिए। अब मैं देखूं कि अगर मुझे फुल टेक्स्ट चाहिए तो ये मुझे, जहां से मैं फुल टेक्स्ट ले सकती हूँ, ये मुझे वहां तक लेकर जाएगा। हम्म दिस जर्नल इज पब्लिश इन द बीएमजे जर्नल्स, ठीक है ना। पीडीएफ, मैं पीडीएफ पे क्लिक क्लिक करूंगी तो पेड, ठीक है। तो आप इसको लॉग इन करके इस तरीके से, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस तरीके से पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये आपको पूरी जो है हिस्ट्री दे रहे हैं। तो ये जो वेबसाइट है जिसका नाम है कंसेंसस, ये इस तरीके से जो है काम करता है। अब हम जरा एक बैक स्टेज और पीछे जो है जरा बैक to जाए तो ओके, दिस वन। अब देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये आपको जो है ये फिल्टर करके दे रहे हैं, ठीक है। अब फिल्टर इसको हम डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। एक तो एक हम फिल्टर कर रहे हैं इसको हम एयरली, ठीक है, कि मुझे इसको एयरली फिल्टर करना है। और साइटेशंस के लिहाज से भी कर सकते हैं, इसको आप जर्नल के हिसाब से भी कर सकते हैं कि आपको कौन से जर्नल्स का चाहिए रेटिंग, Q1 का चाहिए, Q2 का चाहिए, Q3 का चाहिए, ठीक है। इनको कौन सी कंट्री, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे सिर्फ बस पाकिस्तान के ही जो है उसका चाहिए, तो आप सिर्फ बस इसमें जो है पाकिस्तान का सर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर ऑल फिल्टर्स मैंने क्लियर कर दिया। अब ये मुझे सिर्फ बस ये एंजियोग्राफिक पेशेंट्स के ऊपर जितना इसके पास डेटा है सब, यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट करके अपने पास इसको RIS या CSV ये इस फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सेव करना शुरू कर इसमें, ठीक है। अब इसने ये सेव करना, इसमें पास एक विंडो विंडो ओपन हो गई है, उसमें ये सेव का ऑप्शन मांगा है, ठीक है। तो दिस इज द वेबसाइट ऑफ कंसेंसस, ठीक है ना। कंसेंसस ये जो वेबसाइट है, ये आपको पूरी डिटेल में चीजें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो एक और वेबसाइट है, दिस वन इज माय फेवरेट, ठीक है। ये बहुत जबरदस्त वेबसाइट है, ये आप इसमें बहुत सारी चीजें जो है आप इसमें कर सकते हैं। इसका नाम है कनेक्टेड पेपर्स, ओके। अब मेरे पास कोई और टॉपिक आया था मेरे ख्याल से, शायद वो मैं देख लेती हूँ, सीलिएक डिजीज, ओके। माजिद ने भेजा है टॉपिक, फिर ओके, ठीक है। इसका नाम है कनेक्टेड पेपर्स, पेपर सीलिएक डिजीज, ओके। अब इसमें जो मजे की बात है, इसमें एक जो इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, दिस दिस इज द कनेक्शन, ठीक है ना। आपको ये नजर आ रहा हो कि पूरा ये जो है मुझे एक पेपर्स की जितने भी सीलिएक डिजीजेस पे काम हुआ है ना, इसने मुझे एक पूरा पूरे पेपर्स का एक पूरा मैप बना के दे दिया, उसकी एक पूरी कनेक्टिविटी मुझे मेरे सामने उसने शो कर दिए कि भाई इस तरह इतने से इतने इस पे काम हुआ 1992 से लेकर 2020 तक के। अब मैं इसको मजीद फिल्टर आउट करूं अगर तो PDF अवेलेबल इसमें है। अच्छा, इसमें जो है एक मेन चीज क्या है कि ये देखें, अब मैं इस पे जिस पे भी क्लिक करूंगी ना, ये ये वाला पेपर है, एक ये वाला पेपर है, ये वाला पेपर है मेरे पास IgG वाला, ठीक है। IgG एंटी टिश्यूज ट्रांसल्यूमिनेज सेटिंग द स्टेज फॉर सेलिक डिजीज स्क्रीनिंग। अब ये 2001 का पेपर है, 2001 का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं करूँ ओपन ग्राफ, तो इस पेपर से भी रिलेटेड जितने भी पेपर्स इससे कनेक्टेड होंगे, ये इनका पूरा एक मुझे जो है एक पूरा टेबल बना के दे देगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ जो है जनरेट कर रहा है, तो ये इसका नाम है connectedpapers.com, ठीक है। ये आपके पूरी पेपर्स की आपकी जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है कि अच्छा ये पेपर इससे कनेक्टेड है,
ये पेपर इससे कनेक्टेड है। इससे आपके पास क्या होता है कि आप जब रिव्यू आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो आपके पास अच्छा खासा एक आपके कीवर्ड से रिलेटेड पेपर्स आपके पास कंपाइल होते जाते हैं। ठीक है, अब ये जैसे ये है, अब इसने क्या किया इसमें, क्या आपके पास यहाँ पर जो है इसने, ये देखिए, अब मैं यहाँ पर भी क्लिक करूंगी, करंट कंसेप्ट ऑफ सिलिक डिजीज पैथोजेनेसिस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर भी क्लिक किया तो ये आ गया, ये साथ में एब्स्ट्रैक्ट भी दे रहा है। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, और ये राइट हैंड साइड पे पूरा ये जो है अलग से जो है, मैं जिस पे क्लिक कर रही हूँ वहां पे ये लेफ्ट पे उसका जो है वो दे रहा है आपके पास उसका एब्स्ट्रैक्ट। और मैं यहाँ पर भी जिस पे भी क्लिक कर रही हूँ तो वो मुझे इसका जो है पूरा एब्स्ट्रैक्ट दे रहा है, और इसके भी जरिए मैं जो है अच्छा ग्राफ को ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे कोई और भी अगर पेपर का ग्राफ ओपन करना है तो अच्छा, ये ओपन है, ये इसका जो है सिमेंटिक स्कॉलर पर भी खोलेगा, डीओआई भी खोलेगा, गूगल स्कॉलर पर भी खोल सकता है, और पबमेड पर भी खोल सकता है। अब अगर मैं ये पेपर, अगर मुझे उसका पूरा पेपर चाहिए तो मैं देखूं कि ये पबमेड पर फुल टेक्स्ट अवेलेबल है। ठीक है, सिलिक डिजीज के हवाले से, तो ये पबमेड पर ये इसका पूरा पेपर ओपन कर लूंगा। लेट्स सी कि ये है कि नहीं है पेपर। ओके, ठीक है, ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, हेपेटोलॉजी का पेपर है ये। तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट पेपर, बट ये कि इफ यू वांट यू कैन गेट फ्रॉम वेबसाइट और एनी अदर रिसोर्सेज। ठीक है, इसने एब्स्ट्रैक्ट दे दिया, सिमिलर आर्टिकल्स आपको बता रहा है। ठीक है, ओके, तो इसमें ये है चीज। ठीक है, ये जो नाम है जिसका कनेक्टेड पेपर्स, ठीक है ना, ये आपका एक टॉपिक, आपने जब कीवर्ड लिखा ऊपर लाइक जस्ट सर्च, अगर मैं कोई और टॉपिक इस पर जो है सर्च करूं, सपोज मैं सर्च कर रही हूँ इसके ऊपर diabetes, तो ये मुझे डायबिटीज पे तमाम पेपर्स इसने मुझे, और यहाँ से जाकर कनेक्टेड पेपर्स। ठीक है ना, अब मैं ये टाइप 2 डायबिटीज के जो कनेक्टेड पेपर्स होंगे, ये यहाँ से जाकर मैं यहाँ से पूरा एक पेपर का बंच, पेपर्स का बंच पूरा एक हासिल कर सकती हूँ, जो मेरे कीवर्ड से जो है रिलेटेड होगा, और जिसके लिए मुझे इतना ज्यादा कोई चीजें नहीं करनी हो। ठीक है ना, अच्छा, ये साइन अप करने होने का अगर मांग रहे हैं तो आप इसको अपने किसी भी जो है गूगल आईडी से आप इसको जो है साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो है पूरा एक जो है ग्राफ क्रिएट करके दे देता है पेपर्स के दरमियान कनेक्टिविटी के साथ। तो दिस इज अ वेरी यूजफुल टूल जहां पर आप जो है इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास सेकंड है, सेकंड नहीं, जो इसके बाद वाला है वो है कनेक्टेड पेपर्स। ओके, अच्छा, अब हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो है बहुत सारे, अगर हम टॉपिक लें कि अगर मैं एक टॉपिक, मुझे रिव्यू आर्टिकल लिखना है किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, सपोज मुझे जो है डायबिटीज पे लिखना है, और मैं चाह रही हूँ कि भाई मैं जो है ऑथेंटिक जर्नल सर्च करूँ, तो जर्नल्स भी हम किस तरीके से इसमें जो है सर्च कर सकते हैं, मैं ये भी थोड़ा आपको बताती हूँ। ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है journalfinder.elsewhere.com। ठीक है, ये भी हम इसको जरा ओपन करते हैं। ओके, ये जो है, ये आपको आपका एब्स्ट्रैक्ट के जरिए भी बता सकता है, या सर्च बाय कीवर्ड्स, इसमें दोनों ऑप्शंस मौजूद है। अगर मैं सर्च बाय कीवर्ड्स कर रही हूँ तो ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है डायबिटीज। अब डायबिटीज के ऊपर जितना भी जितने भी जर्नल्स मौजूद हैं जो डायबिटीज के ऊपर काम कर रहे हैं, वो आपको बता देगा। ठीक है ना, ये भी आपको इस तरीके, ये पूरे जर्नल्स ओपन करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि हमने रिव्यू आर्टिकल लिख लिया,
अब रिव्यू आर्टिकल हम किस जर्नल में पब्लिश करें, ठीक है ना। हमारा टॉपिक, हमें हमारे टॉपिक के मुताबिक जर्नल को फाइंड आउट कैसे करना, ठीक है ना। तो दिस इज द ये जो वे टू फाइंड आउट द जर्नल अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल, कि आपका जो कीवर्ड है वो कीवर्ड आपने यहाँ पर एंटर किया, उसके बाद फिर आपने जो है उसको जो है फाइंड किया, ठीक है ना। सर्च पे लगा दिया कि भाई ये मेरा जो, अच्छा इसको आप एब्स्ट्रैक्ट के जरिए भी कर सकते हैं, वो भी मैं भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये तो अभी हमने सिर्फ एक कीवर्ड लिखा डायबिटीज। अब डायबिटीज के ऊपर मैं जो है, जो मेरा रिव्यू आर्टिकल है, मेरा रिव्यू आर्टिकल लिखा है या अपना ओरिजिनल स्टडी है, वॉट एवर कुछ भी है जो मुझे पब्लिश करवाना है, ठीक है, वो मैं इनमें से किसी भी जर्नल में जो है पब्लिश करवा सकती हूँ, ठीक है। डायबिटीज एंड मेटाबॉलिज्म। अब मुझे ये पता जाएगा कि इसका कितना इम्पैक्ट फैक्टर है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर 4.6 है, साइट स्कोर 12 है, ठीक है ना। टाइम टू फर्स्ट डिसीजन 5 days है, पूरी मुझे इसमें जो है समरी मालूम हो रही है। और अगर मैं ये चाहूँ विजिट जर्नल पेज, तो मैं जर्नल के पेज पर भी जो है मैं विजिट कर सकती हूँ, जिससे मुझे कंप्लीट उस जर्नल का आइडिया फर्दर और भी हो जाएगा, ठीक है। ये जर्नल के बारे में, डायबिटीज एंड मेटाबॉलिज्म, ये जर्नल है अबाउट द जर्नल, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर मजीद अगर मैं क्लिक करूंगी तो मैं जर्नल, ये फ्रेंच सोसाइटी ऑफ द स्टडी ऑफ डायबिटीज का जर्नल है, ठीक है ना। इसमें काफी सारे आपके पास ऑप्शंस। सबमिट पेपर, अब मुझे पेपर सबमिट करना है, इसमें मैंने देख लिया कि भाई अच्छा ये मेरे क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है, मैं इसमें अपना जो है पेपर पब्लिश कर सकती हूँ। तो मैंने ये जो है सबमिट के उस पे ओपन किया, और यहाँ पूरी आपके पास चीजें आ गई। इंस्ट्रक्शंस टू ऑथर आ गया, इंस्ट्रक्शंस टू टू रिव्यूअर्स आ गया। यहाँ पे अपना अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड ऑन किया और अपना पेपर पब्लिश करने के लिए भेज दिया, ठीक है। अब देखिए इसने मुझे कितने सारे पेपर्स दे दिए हैं डायबिटीज पे, प्राइमरी केयर डायबिटीज, और सेम सेम चीजें मुझे इसने पूरी पूरी डिटेल दे रहा है, ठीक है। किसके चार्जेस है नहीं ये भी मुझे बता रहा है, जैसे इसके कोई नो पब्लिकेशन चार्जेस, ठीक है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, इम्पैक्ट फैक्टर 2.6 है इसका। इस तरीके से डायबिटीज एपिडेमियोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इसका जो है 1.0 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपने रिव्यू आर्टिकल के को कहाँ पब्लिश करना है, ये आप जर्नल की जो है फाइंड आउट इस तरीके से इस वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। देखिए किसने कितने सारे मुझे डायबिटीज के ऊपर जर्नल देते हैं। अगर आप में से मुझे कोई टॉपिक एक मुझसे शेयर करे, तो मैं उस टॉपिक को भी इस पर हम सर्च करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैच माय एब्स्ट्रैक्ट, ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अब मुझे इस पे, अब मेरा जो एब्स्ट्रैक्ट है, अब मैं देखती हूँ कि मेरा कोई एब्स्ट्रैक्ट मुझे यहाँ मिले, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट आपको दिखाऊं, ठीक है ना। लेट मी फाइंड वन ऑफ माय एब्स्ट्रैक्ट, ओके, ठीक है, ठीक है ना। ये एक साइनॉप्सिस है मेरे इंस्ट्रूमेंट का, ये उसमें से मैं आपको जो है, सॉरी थीसिस है। हाँ, ओके, लेट मी ऐड। मैं एक एक जो है ये काम जो है इनका, इनका काम था जो हमारे पास कंटेमिनेटेड वाटर के ऊपर, ठीक है ना। अब कंटेमिनेटेड वाटर के ऊपर काम है। अब ये थीसिस, अब ये एब्स्ट्रैक्ट मैंने पूरा यहाँ ऐड कर दिया, लाकर कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब मुझे इस एब्स्ट्रैक्ट के मुताबिक इनका काम किस पर है बताऊं, कि जो डिफरेंट, ये जो वाटर कंटेमिनेशन है, ठीक है ना, इको इसमें हमने हमने इकोलाई चेक किया था, फीकल कॉलीफॉर्म्स चेक किए थे, तो किस तरीके की जो ड्रिंकिंग वाटर में फीकल कंटेमिनेशन होती है, ठीक है। तो अब ये मैंने इनका एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मैं इस पे जाऊंगी फाइंड जर्नल्स। अब ये जर्नल मुझे कंटेमिनेशन वाटर या एनवायरमेंटल केस में देखें, जिनसे मुझे ये जर्नल बताती है सारे, कि ये जो आपका एब्स्ट्रैक्ट था जिसमें आपने कंटेमिनेटेड वाटर के ऊपर काम किया हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें जो है इसको आप क्या कहाँ पब्लिश कर सकते हैं। पहले तो मैंने सर्च किया था कीवर्ड से, अब मैंने सबको सर्च किया है एब्स्ट्रैक्ट से, कि मेरा एब्स्ट्रैक्ट किस जर्नल के अप्रोप्रिएट है।
तो देखें, इसने मुझे इन्वायरमेंटल एडवांस, जर्नल ऑफ जियो केमिकल एक्सप्लोरेशन, जर्नल ऑफ सऊदी सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है, वो मुझे बता दिया इसने, फ्री ऑफ चार्ज है ये। ठीक है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना ये बता रहा है कि मैं अब ये पेपर, अपनी जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट है, इसके मुताबिक अपना पेपर केमिकल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको जो है सर्च कर सकते हो। तो ये इसका वेबसाइट का नाम है जर्नल फाइंडर। ठीक है, अच्छा, अब हम दूसरी वेबसाइट जरा चेक करते हैं, जर्नल फाइंडर से हटकर। ओके। ओके, ये एक और है, जर्नल फाइंडर डॉट विली। अच्छा, ये एल्सवेयर का है, तो इसमें जो आपको जर्नल्स मिलेंगे वो तमाम आपके पास ऑथेंटिक जर्नल्स होंगे। ठीक है ना, ये नहीं होगा कि इसमें जो है आपके पास कोई वैसे जर्नल्स हैं जो ऑथेंटिक नहीं है, या जो फेक जर्नल्स। ठीक है, अच्छा, अब ये वेबसाइट है फाइंड जर्नल्स दैट मैच योर मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, जो आपका रिव्यू आर्टिकल जो आपने लिखा है, अब आप इस जर्नल में इसके मुताबिक जर्नल अपना सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने वही एब्स्ट्रैक्ट जो मैंने अपने स्टूडेंट का यहाँ से लिया था, सॉरी, जो मैंने यहाँ से इसको पिक किया था। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। ठीक है, वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। अब मैंने इसको बोला कि भाई मैंने स्क्रिप्ट टाइटल भी चाहिए इसको, ठीक है ना, वो मैं कुछ भी लिख देती हूँ। कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब ये फाइंड करेगा जर्नल। ठीक है, मैंने टॉपिक लिख दिया इसको। अब देखें, उसने मुझे जर्नल्स निकाल के दे दिए। वाटर रिसोर्सेज जर्नल, ग्लोबल बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है, ये है जर्नल फाइंडर डॉट विले डॉट कॉम, एनवायरमेंटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो है साथ में मुझे जो है रिलेवेंसी भी दिखा रहा है, और इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी बता रहा है, और ये एडिटर्स का नाम भी मुझे बता रहे हैं, ओपन एक्सेस है ये भी बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसने मुझे इतने सारे जर्नल्स के बारे में बता दिया। सी मोर करना है मुझे, और जर्नल्स चाहिए, तो ये आपको और जर्नल्स भी शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपना इस वेबसाइट के जरिए भी अपना जर्नल्स जो है अपनी टॉपिक के मुताबिक एप्रोप्रिएट जो है सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अब जैसे आपके पास, अब आपने अपना रिव्यू आर्टिकल लिखा, जैसे कि मैंने आप लोगों से कल कहा था कि बहुत सारे हमारे पास उसमें जो है उसको रीराइट, उसको री रीड करना, बार बार पढ़ना जरूरी है, कि उसमें किसी किस्म की जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, किसी किस्म की उसमें जो है पंक्चुएशन मिस्टेक ना हो। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल है, जैसे ये एक वेबसाइट है वर्क वर्ड ट्यून। ठीक है ना, अब वर्ड ट्यून क्या है, वर्ड ट्यून में जाकर जो है आप इसको यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो है इसमें इसमें ये आपको जो है पूरी पंक्चुएशन, आपकी ग्रामर मिस्टेक्स, आपकी तमाम चीजों को ये जो है क्लियरली आपको बता देगा। ग्रामरली तो आई थिंक आप लोग सब आजकल सब इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, लेकिन ग्रामरली के अलावा भी और भी आपके पास कुछ टूल्स अवेलेबल हैं एआई के, इसके जरिए जो है आप उसको इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। ठीक है, ओके, वेयर इज इट, व्हाट यू, ओके, मुझे कह रहा है साइन इन करने के लिए।
तो मैं साइन इन उसको अपने किसी भी जो है किसी भी गूगल अकाउंट के जरिए आप इसको साइन इन कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब ये देखें, इसमें इसमें मैंने कोई एब्स्ट्रैक्ट डाला था, ठीक है। तो ये इसने मुझे ये रीराइट, ठीक है, इम्प्रूव योर राइटिंग, कि मुझे इसमें जो है इसकी राइटिंग समझ नहीं है, ठीक है ना, कि भाई मिस्टेक्स है इसमें क्या है। तो ये आपको जो है रीराइट करके दे देगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर इसको जो है अपने सेंटेंसेस को रीराइट कर सकते हो, कि थोड़ा सा इसको जो है समझ लें, इसको अपनी जो आपने लिखा है उसको इनहांस करके, ठीक है। और जो आपकी पास आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, अगर मैं कहूँ कि मुझे ये वाला पैराग्राफ जो है मेरा, इसको मुझे रीराइट करना है, ठीक है, विद एआई टूल्स। तो ये मुझे बता रहे हैं, देखिए, कि आप इसको हर लाइन को अलग अलग करके इस तरीके से आप इसको जो है फर्दर इनहांस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसने मुझे मेरा पूरा ये पैराग्राफ चेंज करके दे दिया अकॉर्डिंग टू एआई, ठीक है। अब यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि भाई आपके पास इसके पास जो सजेशंस हैं वो भी दे रहा है। लाजमी नहीं है कि इसकी मैं इसके सजेशंस को जो है फॉलो करूँ, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे पास जो है एआई, या हम जब बहुत सारे ऐसे मेडिकल टर्म्स होती हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो है वो जो शख्स ने पेपर लिखा है, ठीक है, वो चाहे रिव्यू आर्टिकल लिखा हो, रिसर्च आर्टिकल लिखा हो, तो बहुत सारी ऐसी जो है टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हमें मालूम होती हैं, लेकिन वो उनके पास सेव नहीं होती है कंप्यूटर में, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जो है हम उसको जैसे हम करते हैं ना, जब हम अपना लैपटॉप जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपको अक्सर औकात जो है आपको ऑप्शंस दे रहा होता है कि नहीं ये लिखना है, ये नहीं ये लिखना है, तो हमें पता होता है कि हमें लिखना क्या है, ठीक है। अच्छा, इसको आप जस्ट एज अ वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये क्लाइमेट चेंज का ये है, इसको मुझे यहाँ से बोल्ड करना है, ठीक है ना, इसको अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, ठीक है ना, और अंडरलाइन कर दिया, इसको मैंने नंबर्स दे दिए, ठीक है, या फिर लिस्ट वाइज करना है, ठीक है। तो ये आपको जो है यहाँ पर ये साइड में आपको ये ऑप्शंस भी दे रहा होता है, हेडिंग इसको कितनी हेडिंग्स में आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। तो ये वेबसाइट है जिसका नाम है एप वर्ड ट्यून डॉट कॉम, ठीक है, जो आपको आपके मुताबिक जो है आपको, अच्छा, इसमें ये जो है आपको ये 196 वर्ड शो कर रहा है, ठीक है। और इसमें 1462 कैरेक्टर्स है, वर्ड काउंट भी आपको जो है ये करके दे रहे हैं। अब मुझे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि भाई अच्छा, ये मेरे पास अगर 250 वर्ड्स का मुझे कोई एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करवाना है किसी भी कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी भी जगह के लिए, तो क्या है कि ये आपको जो है ये बता रहे हैं कि भाई अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूँ इस पैराग्राफ को, तो ये इट वुड बी मोर गुड, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा मेरे नंबर ऑफ वर्ड्स में भी इजाफा हो जाएगा, और ये थोड़ा सा मजीद एक एक्सप्लेन भी हो जाएगा, और जहाँ पर आपके मिस्टेक्स हैं ये भी आपको शो कर रहा है, वहां पर आपने सही कर लिया, ठीक है। तो ये एक जो वेबसाइट है वर्ड ट्यून, ये काफी हद तक आपकी जो है राइटिंग को इम्प्रूव करने के काम आ सकती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और वेबसाइट है, आई होप दिस विल, जिसका नाम है, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट, बट आई होप ये ओपन हो जाए, क्योंकि इसके ओपन हमें
लास्ट टाइम भी कोई प्रॉब्लम थी, लेट मी चेक। ओके, let's call it word digest. अच्छा, if we use word tune or chat GPT to improve English, can I be detected by tool? Yes. अगर आप एग्जैक्ट उसको कॉपी पेस्ट करो, देखो जब भी हम चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हो या कोई भी वर्ड ट्यून या कोई भी सॉफ्टवेयर, अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगी जो आपको पूरा जो है रिव्यू आर्टिकल लिख कर दे देगा। आपको उसमें कुछ नहीं करना, वो आप उसने आपको रिव्यू आर्टिकल लिख के दे दिया। बट अगर आप उसको एज इट इज इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या होगा, वो पूरा आपका जो है प्लेजियरिज्म में जाएगा और वो आपको जो है डिटेक्ट हो जाएगा। देखो हम जब भी एआई टूल इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप चैट जीपीटी में इस्तेमाल कर रहे हो या वर्ड ट्यून या वट एवर कोई भी टूल इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको सिर्फ एज अ हेल्पिंग मूड में लेना है। उसकी चीजों को पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर आपको वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है ना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, तो जस्ट हेल्प लेना है, फिर उसको अपनी वर्डिंग्स में करके लिखना। ठीक है ना, अब दिस वेबसाइट इज पेपर डाइजेस्ट। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, एक आ रहा है लिटरेचर रिव्यू, एक आ रहा है एकेडमिक राइटिंग। अब मैं क्लिक कर रही हूँ लिटरेचर रिव्यू पर। ठीक है, अब लिटरेचर रिव्यू पे मैंने क्लिक किया। आप में से मुझे कोई एक टॉपिक दे बताएं जल्दी से। गिव मी वन टॉपिक प्लीज। वन। ओके, राइट अ रिव्यू ऑन। अब मुझे रिव्यू आर्टिकल, अब इस से बताती हूँ इसमें क्या है, ऑल एरियाज। अब इसमें देखें, आप बायोलॉजी के हैं, बिजनेस के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, मैथ्स के हैं, वट एवर यू बिलोंग, aquatic therapy or antibiotic resistance, let me check both of you. ठीक है, थैंक यू फातिमा एंड सफिया। ओके ओके, ये भी कम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप ऑल ऑल एरियाज में कोई भी आपके पास टॉपिक हो, अभी हम सर्च कर रहे हैं, अभी हमने उसको ओपन रखा है, बट आई वांट टू राइट अबाउट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना, अब मैं इस पे यहाँ पर सर्च पे मैं क्लिक करूंगी, तो मैं देखती हूँ कि ये मुझे क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिटरेचर रिव्यू के नाम पे। ओके, इसने देखें मुझे क्या क्या चीज दिया है। इसने मुझे बताया है कि कर दिया, ये भी ठीक, क्या रिलेटेड वर्क। ठीक है ना, इसने मुझे शुरू में जो है रेफरेंसेस दे दिए तमाम, कि ये आपके पास रेफरेंसेस हैं जो ये शो कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद इसने मुझे जो है देखेंगे रिव्यू ऑफ द रिलेटेड वर्क। अब मुझे इसने एक शॉर्ट सा रिव्यू आर्टिकल, इसने मुझे एक गाइडलाइन देती है। अक्सर का में होता है ना कि हम स्टार्ट कैसे करें, हमें स्टार्टिंग का समझ नहीं आता। ठीक है, कि हाउ कैन आई स्टार्ट टू राइट एनीथिंग। तो इसने आपको जो है एक टॉपिक बता दिया कि भाई आप इसको इस तरीके से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब जो है हम इसको जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें बता दिया एंटीबायोटिक इज अ ग्रोइंग कंसर्न इन बोथ क्लिनिकल एंड मेंटल सेटिंग्स। और इस साथ में मुझे मुझे रेफरेंसेस भी बता रहा है। ठीक है ना, इसने मुझे एक बेकर का रेफरेंस दिया। जब मैंने इस पे क्लिक किया, बेकर पे जाके, तो ये मुझे जो है यहाँ ले आया। ठीक है, अब ये है ये मुझे इसकी फर्दर डिटेल भी चाहिए, तो मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगी। ठीक है ना, ये आपका इम्पैक्ट फैक्टर 8 जर्नल था इसका, ये इसका टॉपिक है। अब मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया, तो ये मुझे पेपर की तरफ लेकर चला जाएगा। ठीक है, जहां पर ही मैं ये पेपर इसको इजीली मैं ओपन कर सकती हूँ। दिस वन। ठीक है ना, को सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड मेटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखें, तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट दे दिया, एब्स्ट्रैक्ट दे दिया इसने मुझे। और फिर इसने मुझे बता दिया कि भाई ये ऑथर ने इस तरीके से साइट करना है, ये इसका ये एब्स्ट्रैक्ट है।
ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू में हमने इस तरीके से जो है हम एक वो हमें एक सेंट्रल आइडिया दे देता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अब हम चाहे हम अपना थीसिस लिख रहे हो, चाहे हम ओरिजिनल आर्टिकल लिख रहे हो, चाहे हम रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हो, लिटरेचर रिव्यू में हमें कहाँ से किस तरीके से स्टार्ट करना है, ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो है या जो रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डेंगू, ये टॉपिक शेयर किया गया उनसे। अच्छा, इसमें देखें, अब इसने मुझे ये बता दिया कि भाई ये जो है रिलेटेड वर्क है। अच्छा, अब ये देखिए ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, पेपर, पेटेंट, ग्रांट, क्लिनिकल ट्रायल, एक्सपर्ट, पास्ट ईयर, पास्ट 5 years, ऑल। अब मुझे चाहिए पास्ट 5 years का, ठीक है। मैंने आपसे कल बताया था ना कि जो लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं वो हम ऐड कर रहे हैं लिटरेचर रिव्यू में, ठीक है। तो इसने मुझे पास्ट 5 years का बता दिया, ठीक है। ठीक है, इसने मुझे पास्ट 5 years के दे दिए, जो दो आपको आई होप नजर आ रहे होंगे, 2020, 2021, 2021, 22, ठीक है। इसने मुझे 2000 से लेकर अभी तक के 2023, 24, और उसने मुझे ये एक शॉर्ट सा समरी लिख के दे दिया। अब मुझे इसको जो है अगर मैं इसको फर्दर करना चाहूँ तो मैं इसको फर्दर भी जो है कंटिन्यू कर सकती हूँ, ठीक है। बट ये कि इसने आपको एक आइडिया दे दिया, रिव्यू ऑफ द रिलेटेड वर्क। अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है। जब मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ तो भी देखिएगा, ठीक है। तो इसकी जब मैं एक्सपेंड किया इसको, तो इतना टाइम लेगा, बट इट कुड बी मोर लेंदी। इसने मुझे ज्यादा डिटेल में थोड़ा सा बता दिया कि क्लाइमेट चेंज जो है वो डेंगू पर किस तरीके से इफेक्टिव होता है, क्या इसमें जो है चेंजेस आती हैं, ठीक है ना। हेमरेजिक डेंगू हेमरेजिक फीवर है, क्या क्या चीजें इसमें जो है कौन कौन सी जगहों पर होता है। फिर इसने मेरे साथ में रेफरेंसेस भी दे दी, ठीक है। और तमाम इसमें मुझे 20 के करीब जो है रेफरेंसेस दिए। दिस इज द गुड नंबर्स फॉर टू राइट अ रिव्यू आर्टिकल, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं अगर मुझे चाहिए जो है, अगर मैं कहूँ कि ये तो मैंने पेपर से निकाले ना, अब मुझे पैटर्न चाहिए, ग्रांट से चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल से चाहिए, कि मुझे जो है पेपर से नहीं चाहिए, मुझे क्लिनिकल से चाहिए, कि जो डेंगू के ऊपर जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए अब वो क्या हुए हैं, अब वो जरा मैं एक नजर देखना चाहूंगी, ठीक है। तो ये आपको ये वेबसाइट, इसका नाम है paperdigest.org, ये आपको वो भी बता देगा, ठीक है। अब देखें, ये मुझे बता रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या क्या काम हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। कि डिफरेंट जो है हॉस्पिटल्स में जो है, या फिर यूनिवर्सिटीज में जो एक क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ना, वो उसके ऊपर ये चीज ये रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। आप जिस रेफरेंस पर क्लिक क्लिक करेंगे, क्लिक करते जाएंगे, वो आपके पास एक सेकंड पे इस पे जो है आपके पास विंडो पे वो पेपर ओपन करता जाएगा, ठीक है ना। फिर आप मजीद उसको एक्सटेंड करना चाहे तो फर्दर उसको आप देखें, आउटकम ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन नर्सिंग होम्स, ठीक है ना। तो इन्होंने इसके ऊपर जो है अपना क्लिनिकल ट्रायल किया था डेंगू को लेकर, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका पूरा एब्स्ट्रैक्ट आ गया, और फर्दर डिटेल्स भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पेपर डाइजेस्ट है, ये आपका अच्छा, अब मैं एकेडमिक राइटिंग की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। अब ये एकेडमिक राइटिंग आ गई। अब मुझे न्यू डॉक्यूमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पर जो आप लोगों ने शेयर किए हैं मुझे। cognitive impairment, ठीक है। Let me discuss about this cognitive impairment, ठीक है। ओके, cognitive impairment, start writing।
अब ये मुझे जो है सजेशंस दे रहा है, ठीक है ना, कि भाई यू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट और इंडिविजुअल्स एबिलिटी। ये मुझे फर्दर भी जो है मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। एक मिनट। ओके। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, शॉर्ट ड्राफ्ट, स्टार्ट राइटिंग। लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लूँ। लैंग्वेज मुझे चाहिए इंग्लिश। मेरा इसका जो है असल में वो जो डेली लिमिट है, इट हैज बीन फिनिश्ड। ठीक है, लेकिन बहरहाल पेपर डाइजेस्ट को हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में। तो पेपर डाइजेस्ट में आप जो है इस तरीके का जो है रिव्यू आर्टिकल ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और वेबसाइट है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पेपर डाइजेस्ट हो गया डन। अच्छा, ये एक और वेबसाइट है जिसका नाम है ट्रिंगा। ट्रिंगा क्या करती है? ट्रिंगा जो भी जो है आपकी जो है राइटिंग को उसको मजीद एनहांस करती है, उसको मजीद बूस्ट अप करती है। एआई राइटिंग एंड ग्रामर चेकिंग, ठीक है। ये आपकी जो आपके पास आप जो ग्रामर की चेकिंग है, जो आपकी वो है क्या कहना चाहिए राइटिंग है, उसको मजीद इम्प्रूव करने की करती है, ठीक है ना। देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, कोई कोई बोर्ड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत बहुत सारी ऐसी जो है वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमारे लिए जो है यूजफुल साबित होती हैं। ओके, ठीक है। अब ये न्यू फाइल में मैं जाऊंगी। न्यू फाइल मैंने ओपन किया, क्रिएटिंग फाइल। अब मैं यहाँ पर जाकर अगर मैं लिखूंगी कुछ, मैं कुछ भी इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर ओके। फाइल नेम, मैंने फाइल नेम, चलिए फाइल नेम रख दें रिव्यू आर्टिकल, ठीक है। प्रोसीड। अब ये भी जो है मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया, एक एब्स्ट्रैक्ट है, उसको मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखें, ये भी जस्ट लाइक वर्किंग एज अ वर्ड, ठीक है। अब ये भी मुझे नो लैंग्वेज इश्यूज फाउंड, ठीक है ना। बट यहाँ पे इतनी सारी इसने मुझे मिस्टेक्स फाइंड आउट कर दी, ठीक है ना। अब मैं एक एक पे क्लिक क्लिक करती जाऊंगी, ये मिस्टेक्स मेरी सही होती जाएगी। आपको नजर आ रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है ना। इससे मुझे जो भी मिस्टेक्स थी, ठीक है, वो देखिए उसको वो रेड करके चेंज करे जा रहा है, ठीक है। अब जितनी इसमें जो ये मिस्टेक्स बताई हैं वो मैं यहाँ से इसको एडिट करती जाऊंगी, तो ये मिस्टेक्स मेरी यहाँ से ये खत्म होती जाएंगी। बट आई मस्ट से अगेन कि जो है लाजमी नहीं है कि जो इनकी जो एआई हमें सजेशंस दे रहा है वो हमारे लिए एप्रोप्रिएट हो, ठीक है ना। हमें एआई की सजेशंस को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको जो है चेक करना होगा कि जो एआई हमें बता रहा है क्या हमें उसी के मुताबिक चलना है, या हम जो है उसको अपने तरीके से जो है चीजों को जो है हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है अब अपने उसकी तरफ जाते हैं कि
एक मिनट, यस इसमें। अच्छा, और आप लोग को मेरी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। क्विल बोर्ड भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते होगे, बाकी ये डिफरेंट है, एलिसिट है, चैट जीपीटी भी इस्तेमाल कर रहे हो, प्री पैरल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। और चैट पीडीएफ है, एआई राइटर है, तो हम बहुत सारी वेबसाइट हमारे पास ऐसी हैं। बट एआई को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है कि एआई को आप जो है अपने किस तरीके से इसको जो है आप फर्दर लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। कि सिर्फ आंखें बंद करके ये नहीं कि एआई पर ही ट्रस्ट करके कर रहे हैं। एआई को और अपनी रिक्वायरमेंट को हमें आमने सामने रखना है, फिर हमें देखना है कि एआई जो हमें सजेशन दे रहा है, एआई जिस वे में जा रहा है क्या हमें भी उसी वे में ही जाना है, ठीक है। तो एआई को हम अपने तरीके से फोल्ड या मोल्ड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जब हम जो है लिटरेचर मैनेजिंग द लिटरेचर रिव्यू को हम जो है डिफरेंट, जब हम वो कर रहे होते हैं ये एक रेफरेंसेस का तो पूरा एक पार्ट है। इस तरीके से हमें जो है रेफरेंसेस को कलेक्ट करना है, उसको जो है कस्टमाइज करना है। अच्छा, दिस द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेंथ ऑफ रिव्यू, ठीक है ना। देखिए तकरीबन जो है, तकरीबन आपका ये जो है, जो हमारे पास जो एक मैंने कल बताया था नैरेटिव और सिस्टमेटिक रिव्यूज में जो एक डिफरेंस था, ये था 8,000 एंड 40,000 वर्ड्स, ठीक है ना, रेफरेंसेस एंड एवरीथिंग ईच इंक्लूडेड। ये आपके पास होने चाहिए। तो बहुत ज्यादा जो है रिव्यू आर्टिकल बहुत ज्यादा जो है लेंदी नहीं होता, 2 या 3 पेजेस का। मैं भी आप लोगों को एक दो सेट दिखाती हूँ रिव्यू आर्टिकल्स के, कि एक किस तरीके से हमें जो है रिव्यू आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है। तो लेट मी शेयर यू द वन ऑफ माय रिव्यू आर्टिकल। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ यू यूज ओनली फॉर द करेक्शन ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, नहीं फिर आपके उसमें जो है फिर वो नहीं होता, फिर उसमें जो है वो प्लेजर में नहीं जाएगा। लेकिन ये कि देखिए एक बात और एक और बात भी आप लोग याद रखिए, ठीक है ना, कि कभी भी जो है जो भी इस तरह की साइट्स होती हैं, यहाँ पर आप प्लेजर चेक, आप जो है अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है या किसे करना है, वहां पर जो है ना अपनी फाइल अटैच ना करें। फाइल अटैच करने के बजाय कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। फाइल अटैचिंग में क्या होता है कि आपकी फाइल वहां पर जो है लोड हो जाती है। तो फिर जब आगे जाकर आपको जो है अगर वो करना है, क्या कहते हैं उसको, प्लेजरिज्म के लिए अगर आपको जो है वहां पर डील करना है, तो फिर वो आपके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि वो आपके पास वहां से जो है प्लेजरिज्म फिर काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जो है याद रखें कि कभी भी जो है फाइल को अपलोड नहीं करें। जैसे मैंने भी किया ना, मैंने कॉपी पेस्ट उसको जो है करके वहां से चेक कर लिया। अच्छा, ये मैं आप लोगों को ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, ये मैं भी आप एक पेपर ओपन करना चाह रही थी, ओके ठीक है। ये पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, पीडीएफ फाइल है, ये मैं चाह रही थी कि आप लोग देखें, ओके। आई होप यू कैन सी माई पीडीएफ फाइल, ठीक है। ये एक के वो है रिव्यू आर्टिकल, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्रिक अल्सर एंड कैंसर कॉजिंग बग, ठीक है। इसके देखिए पहले इसमें हमने जो है इसमें एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, एज यूजुअल कि हम इसमें एब्स्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ठीक है। Thing is going to some एक मिनट, ओके ठीक है। अब ये पहले हमने शुरू में जो है एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट पूरा हमने दे दिया, जिसमें हमने शुरू में बताया है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आर द बैक्टीरिया दैट आर नोटोरियस टुडे, जो थोड़ा सा हमने पूरा एक बैकग्राउंड दे दिया। उसके बाद फिर हमने बताया कि किस तरीके से ये पूरा वर्क करता है, क्या कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट। फिर हम आ गए इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है ना। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने दिया कि एच पाइलोरी क्या है, ग्रेट गैस्ट्रिक ऑर्गेनिज्म ऑफ आइडेंटिफाइड मोर देन 1,000 years। अब देखिए इसमें हमने जो है थोड़े से ओल्ड एक रेफरेंस ऐड किया है, मार्शल 1989। व्हाई? क्योंकि आई एम गोइंग टू गिव द बैकग्राउंड, हम इसमें बैकग्राउंड दे रहे हैं कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा जो है बैक जाना पड़ेगा,
ठीक है ना। तो मैं बैक गई और मैं 1989 से एक पेपर लेकर आई और वहां से इसको मैंने ऐड किया, ठीक है ना। अब इसके बाद इसके इंट्रोडक्शन में फिर मैंने इसका एक हिस्टोरिकल रिव्यू दिया, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा कि ये जो है 2006 का एक पेपर मैंने ऐड किया। फिर इसके बाद फिर मैं गई इसकी एपिडेमियोलॉजी एट अ ग्लैंस, कि इसकी बेसिकली एपिडेमियोलॉजी क्या है, किस तरीके से ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, क्या ये चीजें कर रहा होता है। फिर मैं इसकी जो है माइक्रोबायोलॉजी पर्सपेक्टिव में गई, ठीक है। यहाँ मैंने बताया कि भाई इस तरीके से ये जो है बिहेव करता है, इसका जो है माइक्रोबायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये है जी। एक मिनट, ये जो है यहाँ पर, just give me 1 minute। ठीक है, तो इसमें जो है मैं जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि रिव्यू आर्टिकल में जो है हमेशा आपको जो है, आप पहले शुरू में आपने ओके, ठीक है, फिर इसकी मैंने जो है पैथोफिजियोलॉजी बताई, ये किस तरीके से जो है पैथोलॉजी क्रॉस करता है, दिस इज द हेडिंग्स इन माय रिव्यू आर्टिकल, ठीक है ना। फिर इसके मैंने बताया कि इसका जो है डायग्नोस्टिक ऑप्शंस क्या है, कि इसकी डायग्नोसिस किस तरीके से कर सकते हैं। सब में देखें आपको जो है रेफरेंसेस नजर आ रहे होंगे, ठीक है। फिर जीनोम इन फोकस, कि इसके जो है जीनोम को मैं किस तरीके से स्टडी कर रही हूँ, ठीक है ना। फिर मैंने इसकी जो है वैक्सीन के बारे में बताया, अब वो फुल अप्रोच, कि इसकी वैक्सीन किस तरीके से, हर्बल ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि गर्ल्स के जो भी हम इसके ऊपर काम कर सकते, जो भी डेटा मुझे मिला हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के हवाले से, वो मैंने यहाँ पर ऐड किया था, कि मैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के बारे में जितनी भी अभी तक रिसर्च हुई है उसको एक कंसाइज वे में करके यहाँ पर प्रेजेंट कर दूँ 7 पेजेस में, ठीक है। फिर मैंने इसका जो है कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन में देखिए मैंने पूरा इसको सिर्फ ये बताया कि इन कंक्लूजन अ नंबर ऑफ रिसर्चर्स कंडक्टेड इन द पास्ट डिकेड्स हैव कंफर्म जो रिलेशनशिप्स, कि जो पिछले लोगों ने काम किया था उसी को मैंने जो है उनको कंफर्म किया, और मैंने कहा कि जो है इस तरीके से ये काम करता है, कैजुअलिटी बिटवीन एच पाइलोरी इन्फेक्शन एंड गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनल गैस्ट्रिक अल्सर एंड कैंसर, ठीक है। तो ये पूरा मैंने वहां पर देयर इज अ डायर नीड, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ बताया कि फ्यूचर इसका जो है, इसकी फ्यूचर में हम किस तरीके से फिर मजीद काम कर सकते हैं, इसमें गैप्स मैंने कहाँ पर देखे, कहाँ पर इसमें जो है स्पेस मौजूद है कि जिस पर हम फर्दर स्पेस के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। देयर इज अ डाई नीड दैट द कंसर्निंग अथॉरिटीज शुड मेक stringent steps for control and prevention of this infection which is probably the contaminated food and water, ठीक है। अब मैंने जो मेरे बाद आने वाले रिसर्चर्स थे जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पे काम करने वाले हैं या करने वाले थे, उनको मैंने बताया कि भाई आप इस तरीके से इस पर जो है फर्दर इन चीजों के ऊपर काम कर सकते हो, और देयर इज अ डायर नीड, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इसकी जो है जरूरत है। अब ये मैंने यहाँ पर फिर मैंने रेफरेंसेस ऐड कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक पूरा रिव्यू आर्टिकल जो है कंप्लीट हुआ। तो रिव्यू आर्टिकल का जो है ये इस तरीके का पार्ट होता है, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि अगर मैं आप लोगों से एक और रिव्यू आर्टिकल का पैटर्न शेयर करूँ तो ओके, मैं चेक करती हूँ, अगर एक और भी मैंने यहाँ सेव किया था वो भी आप लोग को दिखाऊं। आप लोग को मैं एक ओरिजिनल आर्टिकल भी दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है ना, कि आप लोग एक ओरिजिनल आर्टिकल भी देख लो कि उसका पैटर्न क्या था। और ओके, दिस वन, ये भी एक रिव्यू, ये भी रिव्यू आर्टिकल है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ठीक है। दिस इज अबाउट द ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस, ठीक है। दिस इज द माई पैरासाइट बेसिकली। Why am I saying is the my parasite? Because I've done my PhD on this parasite, Blastocystis hominis, potential diarrheal agent, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर एक रिव्यू आर्टिकल लिखा, ठीक है, कि किस किस तरीके से इसमें काम हुआ। अब इसकी आप ये देखें, ऊपर मैंने दे दिया एब्स्ट्रैक्ट कि ब्लास्टोसिस्टिस होमिनिस इज अ प्रोटोजोन इंटेस्टिनल पैरासाइट, एक बिल्कुल जर्नल आउटलाइन बैकग्राउंड, ठीक है। ये इसका हो गया एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स मैंने यहाँ ऐड कर दिए,
ब्लास्टोसिस्ट होमिनिस, डायरियल एजेंट, इंटेस्टिनल पैरासाइट्स। फिर मैं आ गई इंट्रोडक्शन पे। फिर अब मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट हेडिंग्स ऐड किए, जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको पेपर में दिखाया था। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन इज द मेन हेडिंग। सब हेडिंग हिस्ट्री ऑफ ब्लास्टोसिस्टिस, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर 1870 का एक जो है के बारे में लिखा है, मैंने यहाँ पर 1912 के बारे में लिखा है, ठीक है। क्या कौन थे फर्स्ट जिन्होंने इसको जो है डिस्क्राइब किया था, कौन ऐसे फिजिशियंस थे जिन्होंने बीएच के बारे में मालूम किया। तो हिस्ट्री ऑफ ब्लास्टोसिस्टिस, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्टिस, ठीक है ना, यहाँ भी मैंने डिफरेंट रेफरेंसेस इस्तेमाल किए। मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लास्टोसिस्टिस, these all are the subheadings. Vacuolar and granular form of ब्लास्टोसिस्टिस, ठीक है ना। फिर इसके सब टाइप्स जो है उसको मैंने ऐड किया। फिर सिस्ट टाइप ऑफ ब्लास्टोसिस्टिस, फिर लाइफ साइकिल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्टिस, किस तरीके से ये अपनी लाइफ साइकिल्स को जो है मेंटेन करता है। फिर अकरेंस ऑफ ब्लास्टोसिस्टिस, फिर एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से हमें इसको एज एंड सेक्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है इसको एक डायग्राम ऐड किया। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम फिगर ऐड कर रहे हैं, ये मैंने एक पेपर से लिया फिगर, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने, आप लोग को नजर आ रहा होगा, यहाँ मैंने एक रेफरेंस ऐड किया हुआ 18 नंबर पर ये रेफरेंस मौजूद है। मैंने रेफरेंस क्यों ऐड किया, क्योंकि दिस इज नॉट द माय पिक्चर, ठीक है ना। ये काम किसी और का था, मैंने किसी और के पेपर से ये ब्लास्टोसिस्ट होमिनिस की पूरी लाइफ साइकिल को यहाँ पे लाकर ऐड किया। तो मुझे यहाँ पर रेफरेंस ऐड करना जरूरी था, तो मैंने यहाँ पर रेफरेंस ऐड किया फिगर 1 में। फिर मैंने बताया कि पैथोजेनिसिटी क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स क्या है, फिर ब्लास्टोसिस्टिस का जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट से क्या जो है रिलेशनशिप है, आईबीएस के पेशेंट से क्या ताल्लुक है, ठीक है। फूड हैंडलर्स में कैसे हम ब्लास्टोसिस्ट होमिनिस के इन्फेक्शंस को देख सकते हैं, जूनोटिक इन्फेक्शंस में क्या इसका जो है अमल दखल है। फिर देन ट्रांसमिशन ऑफ ब्लास्टोसिस्टिस, ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, क्या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, फूड बॉन्ड एंड वाटर बॉन्ड ट्रांसमिशन, सब में जो है इसके मैंने रेफरेंसेस ऐड किए हुए। फिर डायग्नोसिस ऑफ ब्लास्टोसिस्टिस, इसकी डायग्नोसिस कैसे करनी, यू ऑल कैन सी कि मैंने इसमें किसी किस्म का जो है मटेरियल मेथड या किसी किस्म का जो है न्यू थिंग इसमें ऐड ऑन नहीं किया। मैंने सिर्फ डिफरेंट लोगों के जो है पेपर्स लेकर उसको मैंने एक जगह कंपाइल कर लिया ऐसा, ठीक है। फिर मैंने देखा कि अदर इसके डायग्नोस्टिक जो है प्रोसीजर्स क्या है, ठीक है। इस तरीके से फिर मैंने इसका जो है कंक्लूजन ऐड किया कि कंक्लूजन क्या मिला मुझे इसका, ठीक है ना। Procestomase, a potential diarrheal agent, particularly causes serious infection in children of low socio-economic status and attack those who have, ये लिखा मैंने। इसका मैंने लिखा keeping into consideration there is a dire need to create health awareness and to maintain hygienic standards in terms of sanitation promote, ठीक है ना, किस तरीके से हम इसको जो खत्म कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं इसके बीएच को लेकर जिसके ऊपर हम इसमें फर्दर जो है रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने इसके जो है रेफरेंसेस ऐड कर दिए, तो दीज ऑल द रेफरेंसेस, 88 रेफरेंसेस मैंने इसके ऐड किए थे, ठीक है। तो ये आपका रिव्यू आर्टिकल, इस तरीके से आपको रिव्यू आर्टिकल लिखना है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक पेपर जो ओरिजिनल आर्टिकल है, ठीक है ना। वो से आप लोग को आइडिया होगा कि क्या बेसिक फर्क होता है एक रिव्यू आर्टिकल में और एक आपका yes. I hope you all can see that paper, drinking water quality in 13 different districts of Sindh, Pakistan, ठीक है। ये दिस इज द ओरिजिनल आर्टिकल, दिस इज नॉट द रिव्यू आर्टिकल, ठीक है। इसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट ऐड किया, अब इसके देखिए इसमें कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि दिस इज द रिव्यू आर्टिकल, दिस इज द रिसर्च आर्टिकल, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इन 13 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, पाकिस्तान, ठीक है। इसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट ऐड किया था, कीवर्ड्स ऐड किए, इंट्रोडक्शन दिया पूरा, एवरी लिविंग थिंग जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन,
पूरा हमने एक पूरा ब्रॉड से लेकर आए कि पानी की क्या अहमियत है, किस तरीके से पानी को जो है ड्रिंकिंग वाटर की अहमियत क्या है, किस तरीके से उसको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट में आप देखें नो रेफरेंसेस, नो पिक्चर्स, नथिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जस्ट इज अ सेंट्रल आइडिया। अब मैंने इसमें जो है ये हमने इसमें ये जो इंट्रोडक्शन लिखा पूरा, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन लिखा। अब साथ में यहाँ जैसे मैंने कल बताया था आपको कि ऑथर्स नेम यहाँ पर तमाम दिए हुए हैं, ठीक है, जो जिन्होंने पेपर्स में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जो आपके इंस्टीट्यूट का नाम है वो आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है ना, कि जो पेपर भेज रहा है, जो पेपर में अगर कोई मिस्टेक आती है उसको चेक करना। फिर ये जो पेपर जब पब्लिश होता है तो उसमें ये चीजें होती है कि जो है रिसीव कब हुआ, एक्सेप्टेड कब हुआ, देन फिर पब्लिश कब हुआ, ठीक है, फिर इसकी साइटेशन किस तरीके से करनी है वो दी जाता है, फिर इसका पूरा जो है कॉपीराइट होता है, ठीक है। ये पब्लिश्ड पेपर्स में चीजें मौजूद होती है। अच्छा, देन वी आर मूविंग टू द मटेरियल्स एंड मेथड। रिव्यू आर्टिकल में आपने मटेरियल मेथड्स नहीं देखा था, ठीक है ना, उसमें मटेरियल मेथड हम देते हुए बताते कि अच्छा हमने इतने पेपर्स का विजिट सर्वे किया, इतना हमने देखा। बट इसमें देखें, आप देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ वाटर सैंपल, कि कैसे हमने जो है वाटर सैंपल्स वर कलेक्टेड इन स्ट्रायल वाटर्स एज पर स्टैंडर्ड्स विद एसेप्टिक टेक्निक्स। फिर हमने इसको सब हेडिंग्स से दिया, एनालिसिस ऑफ सैंपल्स, कैसे हमने सैंपल्स को जो एनालिसिस किया डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस को जो है फॉलो करते हुए। फिर हमने माइक्रोबियल एनालिसिस किया, ठीक है, जिसमें कौन कौन से मेथड्स अप्लाई किए हमने, पोर्ट प्लेट मेथड किया, फिर फाइनल आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है ना, दीज आर द मटेरियल्स एंड मेथड्स। फिर हम आगे हैं अपने रिजल्ट के ऊपर, ठीक है ना। रिव्यू आर्टिकल में जो है रिजल्ट नहीं होता, ठीक है, मैंने कल आप लोग को जो है उसमें जो है रिजल्ट का कोई नहीं बताया, ठीक है ना, रिजल्ट इसमें नहीं होता क्योंकि हम किस चीज का जो है रिजल्ट दे रहे हैं। बट ओरिजिनल आर्टिकल में तो आपने काम किया है, आपने पूरा मटेरियल मेथड्स अप्लाई किया है, तो यू हैव टू डिस्कस द रिजल्ट, ठीक है। फिर इस तरह से ये जो है आपका फिजियोकेमिकल एनालिसिस हुआ। फिर हमने पूरा एक टेबल दिया कि जैसे हमने जो है बदीन से सैंपल लिए थे, जीएचके से लिए थे, हैदराबाद है, जेसीडी है, कराची है, अपना जो है खैरपुर है, ठीक है, मीरपुर खास है, मिट्टी है, ठीक है, सागर है, सखर है, ठट्टा है। यहाँ से हमने जो है अपने वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए थे। फिर वाटर सैंपल्स हमने कैसे कलेक्ट किया, उसमें हमने उसके एलिमेंट्स देखे, कलर है, ऑडोर देखा, टेस्ट देखा, उसकी अल्कलिनिटी देखी, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, पूरा तमाम हमने इसको जो है एक पूरा इसमें तमाम चीजें चेक की। तो कौन कौन से वाटर में हमें क्या क्या मिला वो हमने यहाँ पर एड ऑन कर दी, ये था हमारा रिजल्ट, ठीक है। फिर हमने इसको एक पूरे जो है फिगर्स के जरिए। अच्छा, यहाँ पर आपको फिगर्स में रेफरेंसेस नजर नहीं आ रहे, क्यों? आपको रिव्यू आर्टिकल में रेफरेंसेस नजर आ रहे, बट इसमें रेफरेंसेस क्यों नहीं है? क्योंकि दिस इज माय ओन वर्क, ठीक है ना, ये हमारा अपना काम था, जो हम ये फिगर्स हमने खुद डिजाइन किए, ये ग्राफ, ये टेबल हमने खुद बनाया है, ये हमने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, ठीक है ना। ये ग्राफ्स हमने खुद बनाए, तो इसमें हम किसी किस्म का भी जो है रेफरेंस ऐड नहीं कर रहे हैं, दिस इज आवर ओन वर्क, ठीक है। फिर हमने जो माइक्रोबियल एनालिसिस किया था वो हमने जो है रिजल्ट में ऐड किया। देन मूविंग टू द डिस्कशन, ठीक है ना। रिव्यू आर्टिकल में भी हम जो है डिस्कशन ऐड नहीं करते, हम किस चीज को जो है डिस्कस कर रहे हैं। इसमें तो डिस्कशन में ओरिजिनल आर्टिकल में क्या होता है, हम अपनी राइटिंग को दूसरे ऑथर्स की राइटिंग से कम, एक डिस्कशन इज अ कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। हम देख रहे होते हैं कि अच्छा हमारा रिजल्ट ये आया, तो बाकी जो है ऑथर्स का जो है रिजल्ट किस तरीके से आया। और डिस्कशन में हमेशा जो है आपकी जो है रिसेंट रेफरेंसेस ऐड होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर हमने जो है डिस्कशन में देखा कि भाई ये चीजें हमने थी कि हमने क्या क्या चीजें जो है evaluate किए, we have evaluated the quality of drinking water from different areas of Sindh, including urban Karachi, different जगहों से हमने सैंपल्स लिए थे, ठीक है ना। फिर हमें डिस्कशन में ये चीजें ऐड की कि पीएच वाटर इतना था। फिर हमने कहा कि भाई जहाँ पर जो है द पुअर क्वालिटी वाटर कॉजेस वाटरबोर्न डिजीज एंड देयर स्प्रेड, ठीक है ना। डिस्कशन ये होता है हमने काम किया ना, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि क्या काम था, क्यों किया, उसके जो है रीजंस क्या थे, उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और वो किस तरीके से जो है सोसाइटी पर जो है हमारे इम्प्लीमेंट हो रहा है, किस तरीके से वो इफेक्ट अपना जो है शो कर रहा है, ठीक है। फिर हमने यहाँ डिस्कस किया कि जो है द रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम अर्बन कम्युनिटीज एंड इंडस्ट्रीज विदाउट एनी ट्रीटमेंट इनटू वाटर बॉडीज,
किस तरीके से जो है प्रॉब्लम कर रही है, पोटेशियम है, टीडीएस है, सल्फेट है, वो क्या प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ना। वो अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के मुताबिक उसकी वैल्यू क्या है, ये हमने ये भी डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि जो है कंक्लूजन, कंक्लूजन आपका रिव्यू आर्टिकल में भी था, जिसमें हमने एक अपनी बात को एक कंसाइज वे में प्रेजेंट कर दिया था। यहाँ पर भी हमने जो है अपनी बात को एक कंसाइज वे में जो है प्रेजेंट कर रहे हैं कंक्लूजन। फिर हमने यहाँ पर जो है अपने जो भी हमारे रेफरेंसेस है वो हमने रेफरेंसेस ऐड कर, ठीक है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिव्यू आर्टिकल एंड द अपना ओरिजिनल आर्टिकल। ओके, फाइन। So this is the whole about the review article. I hope it would be good for all of you. आप लोग की समझ में आया होगा. So thank you so much. This all done from my side. Okay, thank you so much, ma'am. Briefly, एक क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रिव्यू आर्टिकल रिसर्च। मैंने बताया बेटा, देखो रिव्यू आर्टिकल क्या है, जिसमें हम जो है कल मैंने इतना आपको डिटेल में बताई बात कि रिव्यू आर्टिकल में हम डिस्कस कर रहे हैं जो डिफरेंट हमारे पास रिसर्च पेपर्स मौजूद है। जैसे मैं ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर या ब्लास्टोसिस के ऊपर या वॉट एवर, अगर मैं जैसे किसी भी जो है डिजीज के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर मैं अगर मैं जो है मैंने डिफरेंट पेपर्स कलेक्ट कर लिया, अब उन पेपर्स को मैं अपनी वर्ड्स में मैं जो है कंसाइज कर कंपाइल करके उसको मैं जो है प्रेजेंट कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड द रिव्यू आर्टिकल। बट रिसर्च आर्टिकल क्या है कि आपने वो काम खुद से किया। जैसे मैंने भी आप लोगों को दिखाया ना एक एग्जांपल, एक जो है रिसर्च आर्टिकल की ड्रिंकिंग वाटर हेल्थ से, उस पे सारा काम जो है हमने किया। उसमें जो है हमने लैब में वर्क किया, उसका पूरा रिजल्ट हमने जो है एनालिसिस किया, फिर हमने जो है उसके रिजल्ट को जो है प्रेजेंट किया। तो दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन रिव्यू आर्टिकल, जिसमें हम रिव्यू करते हैं जस्ट। कभी आपने देखा है कि कभी किसी ड्रामे का या मूवी का कोई रिव्यू वीडियो देखी, कभी आपने कोई रिव्यू आर्टिकल पढ़ा है कि वो उस शख्स ने वो ड्रामा ड्रामा या मूवी या वो स्टोरी बनाई नहीं होती है, वो सिर्फ उसको ड्रामे को या मूवी को या स्टोरी को वो सिर्फ पढ़ता है, देखता है, फिर उसमें उसको अपनी वर्डिंग्स में अपने उसको जो है इसमें अपनी जुबान में उसको एक्सप्लेन करता है कि इस मूवी में हुआ क्या है, ठीक है। इसी तरीके से रिव्यू आर्टिकल होते हैं कि हम जब किसी आर्टिकल के ऊपर जब हम रिव्यू लिखते हैं तो हम उसको अपनी वर्डिंग्स में बयान करते हैं कि अच्छा इस आर्टिकल में ये चीजें डिस्कस हुई हैं। और रिसर्च आर्टिकल में हम अपनी चीजें बताते हैं कि हमने ये काम किया, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक wall of between the review article and research article. I hope you get my point. अच्छा, इन रिव्यू आर्टिकल इज देयर अ लिमिट टू हाउ ओल्ड स्टडीज वी कैन इंक्लूड। देखो रिव्यू आर्टिकल में देखिए मैंने कहा ना आपका एक इंट्रोडक्शन का पार्ट ऐसा है जिसमें आप जो है ओल्ड आर्टिकल्स या थोड़े से अपने जो है हिस्टोरिकल आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं, बल्कि करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बैकग्राउंड चाहिए। अब एक पेपर है, अब मैं उसमें उसमें जो है मुझे जो है डायबिटीज का बैकग्राउंड दिया हुआ है कि अच्छा ये काम उसमें हुआ था, तो मैं उसको मैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ऐड करूंगी। बट आपके रिव्यू आर्टिकल आप वो लिख रहे हो अपना रिव्यू वाला पार्ट कर रहे हो, रिसर्च रिव्यू वाला पार्ट कर रहे हो, जब आप अपना डिस्कशन वाला पार्ट कर रहे हो, उसमें लाजमी है कि आपको 5 to 6 years जो है अंदर लिमिटेशंस में रहकर के 5 से 6 साल के जो है आपके पास जो पेपर्स मौजूद है उसके ऊपर वर्क करना है। क्यों? आपको उसमें कंपैरेटिव करना है। और कंपैरेटिव कैसे होगा? ज्यादा दूर जाकर जो है कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन हमेशा नजदीक नजदीक की चीजों का होता है। अगर आप एक 1980 का पेपर आप एक ले लेंगे और आप कहेंगे कि मैं अभी 2025 के पेपर से उसको मैं कंपैरिजन करूं उसके मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप जो है ओल्ड स्टडीज ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, फॉर टू इंक्लूड द बेसिक बैकग्राउंड। बट डिस्कशन एंड द जो आपका रिव्यू आर्टिकल वाला पार्ट है उसमें आपको रिसेंट आर्टिकल्स ऐड करने हैं, ठीक है। अच्छा, आई मीन कैन वी इंक्लूड स्टडीज फ्रॉम 90s एंड और ऑल्डर और शुड वी हैव अ डिफाइंड टाइमलाइन? देखो इसकी कोई डिफाइंड टाइमलाइंस नहीं, आप अपने नाम से देखो। जैसे मैंने अभी आप लोगों को डिफरेंट एआई टूल्स दिखाए। अब अगर मैं एक देख रही हूँ कि जो है जो मेरे पास था वो कनेक्टिविटी वाली जो वेबसाइट थी, उसमें मैंने उसको एक टाइम लिमिट दे दिया कि मुझे जो है 2020 से लेकर 25 तक का मुझे पेपर्स चाहिए।
ठीक है, अब उसको मुझे पेपर, अब मुझे उसमें अगर ऐसी चीजें मिल रही हैं जो मेरे लिए वेल इनफ है, तो मुझे पीछे जाने की क्या क्या जरूरत है? ठीक है ना, मैं ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी कि मेरे पास रिसेंट पे अच्छा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने जब काम किया था प्लास्टोसिस्ट होमिनिस के ऊपर, तो उस टाइम पाकिस्तान में सिर्फ एक वाहिद इदारा था, एक वाहिद डॉक्टर थे जो उस पे काम कर रहे थे। मैं आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिज नेम और हिज इंस्टीट्यूट नेम, बट ये कि वो वाहिद थे और आई वाज द सेकंड पर्सन। ठीक है ना, तो इसकी पूरी हमारी एक पूरी यूएसए की थी सोसाइटी, प्लास्टोसिस्ट होमिनिस फाउंडेशन। उन्होंने बाकायदा अपना एक मैगजीन पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने बाकायदा मेरी और वो जो थे डॉक्टर साहब उनकी पिक्चर दी थी बाकायदा नाम के साथ कि पाकिस्तान में सिर्फ ये दो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब मैंने अपना थीसिस लिखना शुरू किया, जब मुझे इसके ऊपर जो है पब्लिकेशन चाहिए थी, डेटा चाहिए था, तब मुझे पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई काम नहीं मिला। तो फिर मुझे क्या करना हुआ कि मैं फिर जो है इंटरनेशनल की तरफ गई, मैंने फिर इंटरनेशनल उसको ढूंढना शुरू किया, मैंने फिर वहां से पेपर्स लिए। बहुत सारे पेपर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, उसकी फुल कॉपी नहीं थी, पीडीएफ नहीं था। फिर मैंने जो है डिफरेंट ऑथर्स को ईमेल्स की, फिर वहां से फिर मैंने जमा की, क्योंकि थीसिस लिखने के लिए आपको एक बंडल ऑफ पेपर्स चाहिए होता है। ठीक है ना, तो आपको पास मेरे पास अच्छा खासा एक पूरा मैटर मौजूद था, अभी मेरे पास है। मैं कहती हूँ कि किसी को कोई अगर इसके ऊपर वर्क कर रहा है तो मुझसे पेपर्स ले सकते हैं। ठीक है, मेरे पास पूरी हार्ड कॉपी में, क्योंकि उस टाइम तो हमारे पास इतना वो नहीं था, तो हम जो है बाकायदा पेपर्स का जो है प्रिंट निकाल कर उसको जो है स्टडी कर रहे होते थे। तो आप वो बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लोकली उस पर काम नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप इंटरनेशनल की तरफ जाओगे। बट अगर लोकल काम है तो दिस इज वेल एंड गुड। क्यों? क्योंकि आप जो रिसर्च कर रहे हो वो आपके, अगर आपको लोकल काम मिल रहा है ना, लोकल डेटा मिल रहा है, तो आप उससे फर्दर अच्छे तरीके से उसको आप एनालाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिटी, अकॉर्डिंग टू योर लोकेलिटी, कि आपके कम्युनिटी में, आपकी लोकेलिटी में जो है उस पर किस हद तक काम हो। जैसे डायबिटीज है, अब डायबिटीज में अगर मैं बाहर जो है यूरोपियन कंट्रीज में या अदर में कंट्रीज में मैं देखूं, तो वहां पर जो है डिफरेंट रेशियो होगा मेल फीमेल का, डिफरेंट टाइप्स की उसमें जो है कोमो कोमो उसकी कोमोर्बिडिटीज के वाले से। बट यहाँ पर क्या होगा, उसका एक अलग सिनेरियो होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपको अपने पेपर्स के लिहाज से, आपको अपने टॉपिक के लिहाज से कौन कौन से पेपर्स मिल रहे हैं। तो रिसेंट इज द गुड वन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई होप के मेरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच अतीक साहब। Thank you so much, ma'am, for this wonderful session. And we should end this meeting now. And if anyone has still any question or query, you can ask in WhatsApp group. Thank you so much, ma'am, once again. And थैंक यू सो मच, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, हैव अ वंडरफुल वीकेंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज Allah. ऑल ऑफ यू।